Now let us calculate the electric intensity at the centroid of a equilateral triangle as shown in figure. So here plus Q charge is placed at a vertex A, plus Q charge is at a vertex B and plus Q charge is at a vertex C. हमें इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किस पोजीशन पे निकालनी है? एट पोजीशन O. दिस पोजीशन इज अ सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल. तो जरा देखते हैं कैसे निकालेंगे इंटेंसिटी को. यहां पे हमने सबसे पहले AO, OC और OB को ज्वाइन किया. ठीक है. O पॉइंट पे हमने किस टाइप के चार्ज को प्लेस किया है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया है. ठीक है. तो इस पूरे के पूरे डेरिवेशंस के अंदर या प्रॉब्लम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट OA, OB एंड OC. OA equals to OB equal to OC. This angle becomes 30 डिग्री. ये आपके पास हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एट पॉइंट M. ये साइड हो गई OM, AM इक्वल टू A बाई 2. ठीक है. आपको मिला क्या जी? AMO is a right angle triangle. तो since AMO is a right angle triangle, इस right angle triangle में OM is the base and AO is the hypotenuse. So AM divide by AM is the base, AM upon AO equal to cos 30 डिग्री. क्या निकालना है जी आपको? AO निकालना है. AO equals to AM by cos 30 डिग्री. So value of AM is AO equals to A by 2 divide by cos 30 is root 3 by 2. So A upon root 3. This is the value. So आप इजिली बोल सकते हो यहाँ पे OA must be equal to OB must be equal to OC equals to A upon square root of 3. ठीक है. ये बात क्लियर हो गई. अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज एट A. दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ E1. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज एट B. दैट इज द वैल्यू इज E2. E1 और E2 के बीच का एंगल कितना हो गया जी? 30 एंड दिस इज 120 डिग्री. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज एट C. दिस इज अ E3. ओके. नाउ रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2 is E. This is the direction of E. So what is the net value of electric intensity at point O? E dash is equals to E minus E3. इसी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है. तो होप दैट डायग्राम समझ में आया होगा. फिर से आप देख सकते हैं O पॉइंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चार्ज A पॉइंट की वजह से E1. O पॉइंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चार्ज एट B की वजह से E2 और O पॉइंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चार्ज C की वजह से E3. E1 और E2 का रिजल्टेंट हो गया E. अब नेट वैल्यू कितनी मिलेगी? क्योंकि ये दोनों क्या है? आपके अपोजिट वेक्टर हैं और एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट हो रहे हैं. तो नेट वैल्यू आपको क्या मिलेगी? E डैश इक्वल्स टू E माइनस E3. ओके. अब हम क्या करेंगे? इंडिविजुअल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. आइए जरा फाइंड आउट करते हैं. यहां लिखोगे E1 इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट O ड्यू टू चार्ज एट A. E1 is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q by में AO square. So E1 is equals to directed along, आप लिखना चाहो directed along AO. Is it clear? So mod value of E1 1 by 4 pi epsilon naught Q by A upon root 3 whole square.
So E1, mod value of E1 is 3q by 4 pi epsilon naught a square. This is the value. Again, E2 is the electric intensity. Again, E2 is the electric intensity at O due to charge at B. Clear? So E2 equals to 1 by 4 pi epsilon naught q by OB square directed towards BO. Then what is the mod value of E2? Mod value of E2 becomes 1 by 4 pi epsilon naught q upon A upon root 3 whole square. So this is 3q by 4 pi epsilon naught A square. Equation 1, equation 2. From equation 1 and 2, we can say that mod value of E1 must be equal to mod value of E2. ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 the mod value of E1 equals to mod value of E2 is equals to E1. This is say. ठीक है, आइए जरा फाइंड आउट करते हैं. सो लेट E is the resultant of E1 and E2. So E is equals to E1 square plus E2 square plus 2E1 E2 cos 120. The value of cos 120 is cos 120 degree is equals to minus half. So E is equals to, this is a E1 square plus E1 square minus 2 E1 square half. ये माइनस को यहां मल्टीप्लाई कर दिए, ये कैंसिल हो गया. E इक्वल्स टू E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर कैंसिल आउट. E इक्वल्स टू E1. ओके, अब फिर से देखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज एट C. अगेन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी at O due to charge at C. So E3 is equals to, मॉड वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं, E3 equals to Q upon 4 pi epsilon naught this CO whole square. So 3Q by 4 pi epsilon naught A square. डायरेक्शन किधर है जी, आप बोल सकते हो E3 is directed along CO, this CO, and E1 या E is directed along OC. This is directed along OC. अब डायरेक्शन को समझोगे, ये हो गया आपका OC, ये हो गया CO. क्लियर कॉन्सेप्ट है, दोनों के अपोजिट वेक्टर हैं, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं और एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट हो रहे हैं. ठीक है, देयरफॉर नेट वैल्यू ऑफ E इज इक्वल्स टू E माइनस E3. सो E की वैल्यू E डैश माइनस E3. अब जरा देखो इक्वेशन 1, 2 और इक्वेशन 3, तीनों इक्वेशन में आप एक ही मैग्नीट्यूड देखेंगे. इस जगह पे वैल्यू क्या हो गई, E इज इक्वल्स टू 0. आ गया जी समझ में. तो व्हाट इज द नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, दैट इज 0. ये कंडीशन कब निकला, जब तीनों वर्टिसेस में हमने पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया है.
अब आपके ब्रेन में क्वेश्चन आएगा कि किसी एक को अगर नेगेटिव चार्ज कर दें तो वो प्रॉब्लम भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लासेस में फिर मिलेंगे नए प्रॉब्लम के साथ, नए चैप्टर के साथ, और होप दैट गॉस थ्योरम के साथ मिलेंगे, कुछ नए टाइप्स के प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सबका शुक्रिया, सबका धन्यवाद चैनल्स को देखने के लिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए काइंडली आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज अ जीनियस फिजिक्स क्लासेस विद एसके तिवारी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, होप दैट ऑन मंडे विथ न्यू टॉपिक्स।